यहाँ पर देखिए, एक मटेरियल है, इसके पास फ्री चार्जेस हैं, इसका क्या मीनिंग है? This is an atom. In the atom, the number of positive charges in the nucleus and the number of electrons in the circumference are all equal. So, this is a neutral atom. Now, if we heat it means we bring it to the room temperature. The cold temperature is -273. That is the original temperature, 0 Kelvin. At the room temperature means +273 Kelvin. So room temperature is supposed to be very high. We don't feel it high because our body temperature is same. Otherwise, it is very high temperature compared to 0 Kelvin. Now, at this temperature, what happens? This electron gets certain energy. Here, due to its energy, it is moving around it with certain velocity. When the energy increase, kinetic energy increase. When kinetic energy increase, its velocity increase. Due to increase of velocity, it goes out. And when it goes out, Then from one particle, it has become two particles. This one particle, which is alone electron, it has got negative charge, and rest of the particle is having positive charge. So now we have got two particles, one is negative, one is positive. Okay. Now, if this process is taking place in hundreds and millions of particles, then in a material we will get a large number of positively charged particle and a large number of negatively charged particle. And this is generally happens in all the material we see around us, because this everything is in room temperature. So in room temperature, in any given material, there are so many number of free charges. This is a free charge, this is a free charge. This we will show like this. Free charge, this is what? Positive charge, negative charge, positive charge particle, negative, positive, negative. And there are certain which are not even broken. These are positive, negative equal. So this is 0, 0, 0. So in any given material, at any given time, we have got all type of particles. Many particles which have got zero charge, many particles which have got positive charge, and many particles which have got negative charge. Right? So this is the general condition. Now, there may be possible that there is some material which do not break up with this temperature. In that case, that material will be like this, and there will be no positive and negative charges here. ठीक है? So material can be like this, material can be like this. Now we create a situation. That situation is, we put here so many positive charged particle here, so many positive charges here, and so many negative charges here. That is very easy to do. Rub a glass, it will have positive charges, we push it here. Rub a plastic, it will have negative charges, we place it here. So negative charges are here, positive charges are here. These positive charges attract negative charges. And what will happen when a positive charge attracts a negative charge? This is a positively charged body, this is a negatively charged body. If this goes back to its place, what will be its net charge? 0. We will say it is neutralized. We will say its charge has become 0. Okay. So this positive charge is neutralized by combination of one electron. Now, these are the positive charges. They are attracting an electron and they want to get neutralized. These also want to get neutralized. Now you see what happens in the two. In the metals, there are so many electrons like this. So what will happen? This plus will attract this and get neutralized. The moment it attracts this, what is in majority here? Earlier the net charge was 0. Once this electron comes here,
then at this place which charge develops? Plus. Okay. This metal becomes positive. When this becomes positive, this will attract one electron from here. So one electron will enter. One electron goes out, one electron enters. Now this positive charge attract this electron. This becomes negatively charged. When this becomes negatively charged, then this plus, this becomes negatively charged, so this minus is attracted by plus. It goes here, again it becomes 0. Now this minus, this is attracted, it comes here. So this becomes neutralized, this is neutralized, but this total thing, because of this electron, has got negative charge. One electron is extra, and this electrons comes here, or this electron when it comes here, it repels this electron. This repels some other electron, and that is attracted by this. So ultimately electrons come here. फिर से देखिए, this plus will attract this electron. Which charge is developed here? Positive. It was 0. One electron is taken out by this. This has become positive. Now this has become positive. This plus and all this plus has the force of attraction, and they pull this electron. So this become positive. When this become positive, it will pull this electron. This will become positive, and this will pull this electron. So ultimately what happens? This electron has come here, it has come here, it has come here, and it has come here. Now again the same process is repeated. This plus pull this electron, this electron, this electron, this electron. Third, fourth, fifth, and there is a train of electrons going from this plate to this plate. This is one scene which can be created. Now look for the other scene. These are the positive charges. These positive charges are pulling it, this minus. These positive charges are also pulling it. But this force towards nucleus is very large. This force towards positive plate is small. So these charges do not go here. ये नेगेटिव यहाँ नहीं गया. यहाँ क्या हुआ था? This charge was less, sorry, this force was less, this force was more, so it had gone there. This force was less. Here, this force is more, this force is less. यहाँ पर ये फोर्स ज्यादा है, यहाँ पर ये फोर्स कम था, तो ये इसमें नहीं गया. नाउ अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये प्लस यहीं खड़ा है. अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, this becomes neutral, remain neutral. So this neutral will not attract any electron. तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें गया भी नहीं. And this whole thing remain as it is. This is another scene. This can happen in some of the materials. What are those materials? Metal. This can happen in some of the materials. Non-metals like air. Right? Okay. So these are the two actions which can take place in some material and in some material. Now, because of this action, whether it has allowed charge to move, it has allowed charge to move, either free charges or within the atoms. It has allowed to move, it has not allowed to move. So there are two types of material in our nature, one which allows, one which do not allow. According to that, we have made classification of the material. And this classification of the material with respect to charge movement we have done. So the first is conductor. These are mostly metals. These allow charges to move within it. इसके अंदर charges move कर सकते हैं. We have seen that example. What are the examples of this? Metals are conductors. Electrolytes are conductor. What are electrolytes? A solution of copper sulfate.
a solution of HCl, where H is positive, Cl is negative. So these are electrolytes. They are also conductors, because in that minus Cl will keep on moving in the liquid. It can move. So if liquid allows negative charge to move, we will call it is a conductor. So electrolytes are conductors, metals are conductors. Okay. Tap water. Pure water is not a conductor, but tap water which is mixed with certain salts, and salts are electrolytes. उसमें सोडियम क्लोराइड हो सकता है, फेरस क्लोराइड हो सकता है, यस मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह से कोई ना कोई उसमें सॉल्ट्स हो सकते हैं, एंड सॉल्ट्स आर हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड बिकॉज ऑफ दोज इलेक्ट्रोलाइट्स इट विल बी ए कंडक्टर. देन ह्यूमन बॉडी हैज गॉट blood, it has got sweat, and it is all combined with salts, electrolytes. Therefore this is also a conductor. Okay, now the property of this is conductor. Then the second part is insulator. Insulator is the material which do not allow charges to move through it. ये हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, this. And which is the insulator around us? Air. All this air is insulator. That is why if there is a plug over here, it cannot give me shock, because there is air in between, and air does not allow travel of the electrons. It does not allow the travel of charges. Therefore that is a insulator. So this material is insulator. And what is definition of insulator? The material which do not allow charges to move through it. Examples are non-metals, plastics, gases, pure water. Pure water is insulator. Okay, right. Now the strength of conductor and strength of insulator, that property we have given the name. Better conductor, much better conductor. What it will have? Answer: it will have conductivity. What it will have? Conductivity. More the conductivity, better conductor it is. ठीक है? This is one thing. Other thing, insulators. इंसुलेटर की स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. इंसुलेटर क्या करेगा? इंसुलेटर चार्ज को मूव नहीं करने देता है. यहां पर हमने ये तार रखी, और ये तार को मान लीजिए हम अपने पावर हाउस से एक दूसरे शहर में ले जा रहे हैं, और इसमें से इलेक्ट्रॉन चल के जा रहे हैं, क्योंकि उस सेकंड सिटी में हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. वी नीड इलेक्ट्रिसिटी देयर, सो वी सेंड चार्जेस थ्रू इट. बट इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, वी हैव टू इरेक्ट पोल्स इन बिटवीन. सो इफ देयर इज ए पोल इन बिटवीन, ये एक पोल है, यहां से हम तार को ले जाते हैं और इसको इसके साथ बांध देते हैं. द वायर इज गोइंग हियर, हियर इज द पोल, वी हैव टू क्लैंप इट at different poles so that it can be put around it. Now what happens when we send the charges through it? The charges will go through this, and go to the earth. The charges will not reach the other city where we are sending it. अर्थ में चले जाएंगे, okay, एक दूसरे को रिपेल करते हुए, and the charges will not reach the destination. So what we need, we want that they should not be connected. So what we do, we put a insulator here. We put an insulator here. This is insulator like this, and here we put the wire. Now if electrons are going, if they want to go to earth, they are not allowed, because this is what? Insulator. So insulator will not allow it to go, and the electron will have to go through the wire only, and it will reach the destination. This is the work of insulator. So अगर मुझे इस शहर से दूसरे शहर तक पानी ले जाना है, पानी, तो मैं जमीन पर पानी डाल दूंगा, ग्राउंड पे पानी डाल दूंगा, वो पानी नहीं पहुंचेगा, फैल जाएगा.
तो मुझे एक पाइप चाहिए, उस पाइप में पानी फ्लो कराएंगे तो दूसरे शहर में पहुंच जाएगा। पाइप की स्पेशलिटी क्या होती है? पाइप की स्पेशलिटी ये है कि वो पानी को अपने अंदर से नहीं जाने देता। मेटल की, ये हमने पाइप बनाया, ये क्या है? मेटल। पानी यहां पर है, क्या वो पानी यहां से निकल के यहां जा सकता है? नहीं जा सकता, मेटल उसको अलाउ नहीं करता। अब हमने ये पानी का पाइप ऐसा बनाया, लंबा करते 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 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में ले गए, पानी पहुंच गया। अगर हमारे पास ये पानी का इंसुलेटर नहीं होता तो क्या हम पानी को पहुंचा सकते थे? नहीं पहुंचा सकते। यही काम इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर करते। अगर मुझे यहां से, इस कमरे से दूसरे कमरे तक इलेक्ट्रिक चार्जेस को ले जाना है, तो हम सब जानते हैं हमारे घर की तार कैसे होती है, मेटल, और मेटल के ऊपर इंसुलेटर प्लास्टिक। अदरवाइज वो मेटल जिस दीवार से जाएगा उस दीवार में करंट आ जाती है, चार्जेस चले जाते हैं उसमें, और वो चार्जेस फैल गए, दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे। तो अगर हमको चार्जेस को फ्लो कराना है तो हमको क्या चाहिए? इंसुलेटर। बिना इंसुलेटर के करंट फ्लो नहीं हो सकती। सी, करंट फ्लो कराने के लिए, चार्जेस फ्लो कराने के लिए हमें क्या चाहिए? चार्जेस दौड़े उसके लिए कंडक्टर, दौड़कर बाहर मत चले जाएं उसके लिए, हाँ, जैसे अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी है तो आपको क्या चाहिए? मोटरसाइकिल में इंजन, जो कि क्या करेगा? दौड़ाएगा, और दौड़ा के कहां ले जाएगा आपको? समुद्र तक। हम नहीं जाना चाहते, तो हमको क्या चाहिए? ब्रेक। ठीक है, तो जितनी जरूरत हमको इंजन की है उतनी जरूरत कितनी किसकी है? ब्रेक की, क्योंकि हमको रुकना भी तो है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब कंडक्टर में जाते हैं तो उसके चारों तरफ क्या चाहिए? इंसुलेटर चाहिए, अदरवाइज हम उसको गाइड नहीं कर सकते। जैसे जैसे पाइप को मोड़ेंगे पानी मुड़ता जाएगा, जैसे जैसे इंसुलेटर का प्लास्टिक मुड़ेगा उसके अंदर के मेटल में चार्जेस फ्लो होते जाएंगे। सो दिस इज द वर्क ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, हमारे अंदर से अगर बॉडी से चार्जेस जाएंगे वी विल गेट ए शॉक। तो जो चार्जेस फ्लो होने का रास्ता है, कंडक्टर्स है, उसके ऊपर हम प्लास्टिक लपेट देते हैं ताकि हमारा हाथ भी लगेगा तो कंडक्टर से चार्जेस हमारे हाथ में नहीं आ सकते। वी आर सेफ। स्क्रू ड्राइवर में इसीलिए हम इंसुलेटर लगाते हैं। ऊपर जो आपने देखा ग्रीन कलर का या प्लास्टिक का हैंडल लगता है, दैट इज ए इंसुलेटर। अच्छा, क्या इंसुलेटर से कभी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं हो सकता? आंसर है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, तो अगर हम यहां पर, इसके पास बहुत सारे चार्जेस हैं और इसके, ये इंसुलेटर है, हमने क्या देखा है कि ये इसको ज्यादा जोर से खींचता है, इसलिए ये इधर नहीं आता। अगर ये इधर आ जाए, फिर ये इसको खींच ले, फिर ये इसको खींच ले, फिर ये इसको खींच ले, तो क्या स्टार्ट हो गया? कंडक्शन। ये कब हो सकता है? तो आंसर है, ये तब हो सकता है जब हम इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कर दें, द स्ट्रेंथ शुड बी सो लार्ज that it will apply a force, and this force should be larger than this force. If this force is larger than this force, then what will happen? This electron will go here. तो हम इसको बढ़ाते गए, बढ़ाते 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 इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ऐसा। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकला तो ये भी पॉजिटिव बन गया, इसने इसको खींच लिया क्योंकि इसको इसकी ताकत भी मिली हुई है। बोथ दिस स्ट्रेंथ टुगेदर इसको पुल कर लेते हैं, देन ऑल दीज थ्री स्ट्रेंथ टुगेदर इसको पुल कर लेते हैं, एंड ऑल दिस स्ट्रेंथ टुगेदर इसको पुल कर लेते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन हैज गॉन, इट हैज बिकम ए कंडक्टर. So insulator is converted into conductor, and this characteristic, this phenomena is known as breakdown of insulator. Breakdown. So we have seen that breakdown is possible if there is a very strong force here. How much that force is? So answer is
फॉर डिफरेंट मटेरियल दिस फोर्स में बी डिफरेंट. हो सकता है किसी में ये फोर्स ज्यादा हो सकता है किसी में ये फोर्स कम हो. जितना ये फोर्स होगा उतना ही फोर्स हमको इधर चाहिए. तो नॉर्मली एयर के लिए जो हमको फोर्स लगता है दैट ब्रेक डाउन. We will study what is electric field. Electric field is measurement. It has a measurement of force. So, break down electric field. We need 3 into 10 to the power 6 Newton per coulomb. एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगना चाहिए? 3 into 10 to the power 6. फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा? इंसुलेशन ब्रेकडाउन. फिर एयर में से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे. अगर मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया इतना फोर्स, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और वो इतनी स्पीड से जाएंगे कि रास्ते में जो भी एटम पड़ेंगे उनसे टकराएंगे जोर से. उससे टकराएंगे तो गर्म हो जाएंगे और गर्म होकर चमकने लगेंगे. एंड वी विल से देयर इज ए स्पार्क. वी हैव सीन ए स्पार्क. तो ये स्पार्क क्या हुआ? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द इलेक्ट्रॉन विच आर स्ट्राइकिंग द एटम्स ऑफ एयर इन बिटवीन गेट्स हीटेड अप. दे गेट सो मच हीटेड अप दैट दे शाइन. एंड दिस शाइनिंग वी सी, वी कॉल इट स्पार्क. समझ आया? स्पार्क क्या होता है, बिजली गिरना क्या होता है? ओके. सो दैट इज इंसुलेटर ब्रेकडाउन. ये जो स्ट्रेंथ है इतनी स्ट्रेंथ लगाने से इसमें ब्रेकडाउन हो गया. इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. डाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक को खत्म करने वाली स्ट्रेंथ. ठीक है. सो दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? Dielectric strength of an insulator is the maximum electric field it can withstand before it breaks down. जैसे हमने 1 लाख वोल्ट लगाया और उसने इलेक्ट्रॉन चलना अलाउ नहीं किया. जैसे ही 1,01 वोल्ट किया, इलेक्ट्रॉन टूट के आ गया, फ्लो स्टार्ट हो गया. तो उसने कब तक रोक के रखा? 1 लाख वोल्ट तक रोक के रखा. वो 1 लाख वोल्ट क्या कहलाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. समझ गए? जब तक उसने अपने इंसुलेशन को रोक के रखा, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. तो हम क्या चाहेंगे? हमारे मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा. तो हमने देखा एयर से और अच्छे अच्छे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती हैं. पोर्सलिन हम बहुत यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए. पोर्सलिन, चीनी मिट्टी. एबोनाइट यूज करते हैं. हमारे जितने स्विच होते हैं सब एबोनाइट के बने होते हैं. उसके अंदर में मेटल होता है जिसमें चार्ज फ्लो करेगा. तो हम तो चार्ज को हाथ लगाना नहीं चाहते, अदरवाइज हमारी बॉडी में शॉक आएगा. तो इसलिए हम उसके ऊपर एबोनाइट के स्विच बना देते हैं, प्लास्टिक. दैट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर. पोर्सलिन इज ए बेटर इंसुलेटर. तो आप देखते हैं ये जो बाहर बड़े बड़े टॉवर्स लगे हैं उसके नीचे कंडक्टर्स, तार जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस. वहां पर पोल और कंडक्टर, इसके बीच में क्या होता है? इंसुलेटर. दैट इज मेड ऑफ पोर्सलिन. ब्लैक कलर का दिखता है. सो हम सब चाहते हैं इंसुलेशन की पावर ज्यादा से ज्यादा. एनीवे, एक फिगर आप याद रखेंगे. व्हाट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर द एयर? 3 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम. आगे जाके हम देखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो this is property of insulators, conductors and insulators. There are 2 classification of the material. There is a third classification. Third classification is semiconductor. सेमी क्या होगा? इन दोनों के बीच. इन दोनों के बीच हम सेमी उसको बोलते हैं जो कंडक्टर भी बन सकता है, इंसुलेटर भी बन सकता है, दोनों. ये ऐसे मटेरियल होते हैं ठंडे टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर होते हैं और गर्म टेम्परेचर पे
कंडक्टर बन जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ये रीजन आपने देखा, ये ठंडे में इनके पास इतनी ही एनर्जी होती है कि ये यहां घूम सकते और ये इनको खींच कर रखता है। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, वी गिव सर्टेन एक्स्ट्रा एनर्जी, दिस गोज आउट, बिकम्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इधर अगर हम एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें, इधर या इधर, इस इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए उसको इसको तोड़ के खींचना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आराम से इसको खींच लेगा वो। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कंडक्टर। तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो लो टेम्परेचर पे ऐसा होता है और रूम टेम्परेचर पे आके ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है? कंडक्टर। ये क्या है? नॉन कंडक्टर। और ऐसा मटेरियल जो गर्म करने से कंडक्टर बन जाए उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ज्यादा चार्जेस उसमें मूव करने लगते हैं। इट बिकम्स ए बेटर एंड बेटर कंडक्टर। सो दीज आर नोन एज सेमी कंडक्टर्स। ओके, अब ये सेमी कंडक्टर हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। नेक्स्ट इज एक बड़ी छोटी सी कैटेगरी है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स हम लोग जब रेसिस्टेंस पढ़ेंगे उस समय थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये एक मटेरियल की कैटेगरी है इसलिए हम लोगों ने इसको नोट किया। सो सुपर कंडक्टर्स आर दोज विच आर हैविंग जीरो रेसिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्टर से भी सुपर है ये। इसमें इलेक्ट्रॉन के रास्ते में कोई अपोजिशन, कोई रेसिस्टेंस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन गोज स्ट्रेट, इसकी करंट कभी कम भी नहीं होती, बिकॉज दे हैव गॉट जीरो रेसिस्टेंस। ये सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? तो ये कुछ मटेरियल हैं जिन पर हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि उनका टेम्परेचर जब बहुत लो हो जाता है, जैसे मरकरी है, कुछ और हैं, टेम्परेचर इनका ऑलमोस्ट 2 डिग्री केल्विन, 3 डिग्री केल्विन, 1 डिग्री केल्विन, इतना लो जब हो जाएगा तो हम देखते हैं कि सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। उनका रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं रहता। देयर इज ए फिनोमिना कि ऐसा क्यों होता है, देयर इज ए फिनोमिना कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। दिस ऑल वी विल स्टडी व्हेन वी विल स्टडी सुपर कंडक्टर इन रेसिस्टेंस, राइट, व्हेन द रेसिस्टेंस बिकम्स जीरो। बट फॉर मटेरियल कैटेगराइजेशन we have studied that basically there are 2 categories, conductors and insulators. Nowadays in electronics we have a 3rd category, semiconductor, and in the modern physics what we are doing research on is superconductors. So this is classification of material. Okay, now we go to another phenomena. That phenomena is we want to charge a body. ये हर एटम क्या होता है? न्यूट्रल। एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना, दैट इज न्यूट्रल। सब मॉलिक्यूल से मटेरियल बना, दैट इज न्यूट्रल। और उस मटेरियल से अर्थ बनी, यूनिवर्स बना, दैट इज न्यूट्रल। तो पूरे यूनिवर्स का नेट चार्ज कितना होता है? 0। ठीक है, ओके। पर यूनिवर्स के अंदर हम लोग चाहें इस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हमने करके देखा था, रब करके देखा, ये बॉडी चार्ज हो गई। इस तरह से हम किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं। बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को देखिए। तो बॉडी चार्ज करने के लिए, चार्जिंग ए बॉडी, फर्स्ट मेथड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बाय रबिंग। रब करने से क्या होता है? देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर फंस जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें फंस जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास आया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो इसका चार्ज क्या हो गया? माइनस। इसका चार्ज क्या हो गया? प्लस। 0 था, इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो इसका चार्ज क्या हो गया? प्लस। और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो इसका क्या हो गया? माइनस। अब प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन इतना जबरदस्त होता है कि ये वाला इस पहले टुकड़े को जिसके पास माइनस डेवलप हुआ पकड़ लेता है जोर से। अब मैंने चौक को ऐसा किया तो वो टुकड़ा इसके साथ चिपका हुआ रह जाता है ऐसे।
और बाकी चौक आगे चली जाती। ठीक है, तो ये जो चार्ज हुआ, ये पार्टिकल चार्ज हुआ, कैसे चार्ज हुआ? रब करके। समझ आ गया? ओके, फिर से हमने एक ग्लास लिया, ग्लास को ऐसे किया, इसके इलेक्ट्रॉन इसने पकड़ लिए, इसमें छूटते जा रहे हैं। अब हमने ये ग्लास को ऐसे लिया, इसके इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन वी विल से इट हैज डेवलप्ड पॉजिटिव चार्जेस। सो इसमें पॉजिटिव चार्जेस हुए, इट हैज बिकम ए चार्ज्ड बॉडी, एंड दिस चार्ज बॉडी हैज बिकम बाय विद मेथड, बाय रबिंग। सो दिस हैज बिकम चार्ज्ड बाय रबिंग। ये एक मेथड है। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड इज बाय कंडक्शन। ये हम एक बॉडी लेके आए। कंडक्शन का मतलब, कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कांटेक्ट, टच करना जरूरी है। ओके, टच करने का मतलब अभी इन दोनों के बीच में एयर है, विच इज ए इंसुलेटर। एयर कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, अब एयर खत्म हो गई, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? कांटेक्ट में आ गए। ओके, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। कौन से चार्जेस? माइनस। एक्सेस, प्लस माइनस जो होंगे होंगे। ये वाली बॉडी प्लस माइनस अभी कैसी है? जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। अब हमने यहां पर इसको क्या किया? कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में आ गए। ये निगेटिव चार्जेस सब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 मिलके इस माइनस को रिपेल करते हैं। रिपेल करेंगे तो क्या होगा? दिस वांट्स टू गो आउट। ये सब ने मिलके इसको रिपेल किया तो ये बाहर जाएगा, लेकिन इसके बाहर नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? It cannot go out because outside is what? Air, and air is a insulator. इसलिए ये कहां खड़ा है? बॉर्डर पे, because air does not allow it to come through. अब हमने क्या किया? इसको कांटेक्ट दे दिया। ये कांटेक्ट क्या चीज है? मेटल। ये कांटेक्ट क्या चीज है? कंडक्टर। It will allow charge to come. तो इसने इसको अलाउ किया, ये ऐसे इसके अंदर चला गया, इसको इस सब ने ढकेला, ये इसके अंदर चला गया, ये इसके अंदर चला गया। तो पहले इसके पास देयर वेर ओनली 2 माइनस, नाउ यू सी ये सब एक्सेस माइनस कहां से आए? इसके रिपेल किए हुए। अब उसके बाद हमने इसको हटा लिया। अब जब हमने इसको हटा लिया तो इसके पास चार्ज अभी भी जीरो है कि नेगेटिव हो गया? नेगेटिव हो गया, एंड दिस बॉडी इज चार्ज। ये चार्ज हमने किससे किया? टच करने से। वी कॉल इट दिस इज चार्ज बाय कंडक्शन। सो दिस इज अनदर मेथड। एक बॉडी लेकर आइए, उसको टच करा दीजिए, दूसरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। क्या इसका? अब सी अदर क्वेश्चन, विल द फुल चार्ज गो हियर? आंसर नो। ये देखिए यहां पे गए 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब यहां से एक और आया, यहां कम बचे हैं, यहां के 6 जो थे, ऑल दिस 6 आर पुशिंग दिस वन हियर, लेकिन ये वाले जो 6 हैं ये इसको रिपेल करते हैं। और ये किधर रिपेल करेंगे? वापस। ये इसको आने नहीं देंगे। जैसे ट्रेन के डब्बे में खाली डब्बा है तो पैसेंजर भर जाते हैं, और भर जाएंगे तो फिर वो और पैसेंजर को नहीं आने देंगे। सिमिलरली ये सब इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करके नहीं आने देगा, सो इट विल स्टॉप। So after some time the exchange of charges stops. उसके बाद हम इसको हटा लेते हैं, and what we find कि इसके पास जो चार्जेस 10 थे, 10 से 6 हो गए, 7 हो गए, 5 हो गए, कम हो गए, और इसके चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो गए। So there is a redistribution of charges, not that all the charges will go. Understand? Okay. So this is by conduction. Now we will see this. There is another phenomena which is known as induction. Okay, now we will study what is induction. There is a phenomena of electrostatic induction. ये एक नॉर्मल बॉडी है, मेटल है। मेटल के अंदर टेम्परेचर के कारण ऑलरेडी
फ्री चार्जेस जनरेट हो चुके हैं। तो इसके पास किस तरह के पार्टिकल्स हैं? पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, एंड ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटेड हियर होमोजीनियसली, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, इस तरह से ये सब हैफाजर्ड है। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखी। ये नेगेटिव चार्जेस किसको पुश करते, किसको पुल करेंगे अपनी तरफ? पॉजिटिव को। और किसको रिपेल करेंगे? नेगेटिव को। इन्होंने वही किया। तो इसमें से थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस इन्होंने खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्जेस इसने खींच लिए। तो खींचने से क्या होगा? दिस इज ए मेटल, इट्स ए कंडक्टर, इट अलाउज चार्जेस टू मूव। तो इसके अंदर के पॉजिटिव चार्जेस थोड़े से मूव हुए और इस किनारे पर आ गए, प्लस 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 प्लस। ये इसको खींच रहा है, ये इस तरह से इस सब पर एक फोर्स लगा, ये इधर आ गए। अब यही माइनस रिपेल किसको करते हैं? माइनस को। इन्होंने इसके माइनस को रिपेल किया तो माइनस चलने लगे, रिपेल होके दूर जाते जाते बाहर तो जा नहीं पाएंगे, तो कहां तक चले गए? बॉर्डर तक। बॉर्डर तक जाकर यहां इकट्ठे हो गए। देखिए ये ऑल माइनस आर हियर। सो इसके अंदर चेंज हुआ, फिर से इसको पास में लाने से इसके अंदर चेंजेस हो गए। क्या चेंजेस हो गए? पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। ऐसे दो अपोजिट चीजें अगर एक तरफ हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन होना। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। सो द चार्जेस आर पोलराइज्ड। ठीक है। सो व्हेनेवर a charged body is brought near a uncharged body, the uncharged body gets polarized. One type of charges on one side, other type on other side. ये चार्जेस इनको अट्रैक्ट करके खींच के रखते हैं। यहां पर हम हाथ लगाएं या कोई दूसरा काम करें, इन चार्जेस को हम नहीं उठा पाते। इसको हमने यहां पर एक मेटल लगाया और इनको बोला आ जाओ मेटल में से, ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसने इनको खींच के रखा है। इसलिए ये वाले चार्जेस के साथ हमने क्या एडजेक्टिव लगा दिया? बाउंड चार्जेस। दीज आर बाउंड चार्जेस। ये चार्जेस इससे दूर भाग रहे हैं, दे वॉन्ट टू गो एज अवे एज पॉसिबल। यहां पर हमने एक तार लगाई ऐसे और इनको बोला इसमें से आ जाओ, तुरंत आ जाएंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू गो मोर एंड मोर अवे। समझ गए? इसलिए इन चार्जेस को क्या बोलते हैं? फ्री चार्जेस। दे आर फ्री टू मूव। अब यहां पर ये फ्री चार्जेस, दिस हैपन्स। क्या हमने इसको टच किया? नो कांटेक्ट। कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमने कांटेक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेस इसमें चले जाएंगे। तो हमने कांटेक्ट नहीं किया, बस इतना ही किया, इसको पास में ले आए। ठीक है, पोलराइजेशन हो गया, बस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्ट जब भी हम करते हैं, किसी भी चीज को हम चार्ज कर देते हैं लेकिन उसको टच नहीं करते। बिना टच किए हमने कुछ किया, कुछ एक्शन हो गया, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड हम इंग्लिश में बहुत यूज करते हैं और हर जगह आप बारीकी से देखेंगे। इंडक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक आदमी दूसरे के पास गया, उसको जाके बोला तुमको ऐसा 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 करना है, हाँ ये आएगा तो ऐसा करना। उसकी ड्यूटी उसको समझा दिया, उसने उसको टच नहीं किया, लेकिन वो आदमी अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। दैट इज नोन एज इंडक्शन। आप नौकरी में जाएंगे, पहले 5 दिन आपका इंडक्शन होगा, वो आपको समझाएंगे क्या करना। ओके, सो एनीवे दैट इज अ जनरल मीनिंग। हियर दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इस इंडक्शन का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, ये 2 गोल्ड लीफ है। अच्छा, अगर ये गोल्ड लीफ पैरेलल हैं तो इन पर कोई चार्ज है या नहीं है? नो चार्ज, देयर इज नो अट्रैक्शन रिपल्शन, ऐसे ही। अब यहां पर हमने एक माइनस वाली प्लेट रखी, हम क्या देखते हैं? ये दोनों रिपेल हो गए।
अब बताइए ये क्यों रिपेल हो गए? दोनों पे सेम चार्ज आया। कौन सा सेम चार्ज आया? नेगेटिव। हमने टच नहीं किया ऊपर। फिर से सोचो, नेगेटिव ने किसको खींचा? इंडक्शन से पॉजिटिव को खींचा। पहले इसके पास नेट चार्ज क्या था? 0, यानी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, सेम क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमने इसको यहां नेगेटिव को रखा, इसने किसको अट्रैक्ट किया? पॉजिटिव को, तो इसके पॉजिटिव यहां चले गए और इसने किसको रिपेल किया? नेगेटिव को। तो नेगेटिव कहां जाएंगे? दूर, दूर गए, तो इसके पास कौन से चार्ज आ गए? यस, समझ आया? सो इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो तरीका समझ आया? बाउंड चार्जेस कौन से बन गए? पॉजिटिव, और बाउंड चार्जेस ऊपर चले गए, तो कौन से चार्जेस फ्री रह गए? नेगेटिव, विच कम हियर। ठीक, इसको अपने डायग्राम में कर लीजिए करेक्ट। सो देयर विल बी रिपल्शन। दिस इज इंडक्शन। तो ये इंडक्शन हमको जगह जगह मिलता रहेगा। अगर यहां पर मैंने एक तार रखी और इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस टेबल में कौन से चार्जेस आ जाएंगे? नेगेटिव, ऊपर की तरफ। और टेबल के नीचे कौन से चले जाएंगे? हाँ, चार्ज नहीं हुआ ये टेबल। क्यों? नेट चार्ज अभी भी 0 है। सिर्फ क्या हो गया? पोलराइजेशन, माइनस एक तरफ प्लस एक तरफ। ठीक, ये समझ आ गया? हाँ, इसमें भी वैसे ही हुआ, पॉजिटिव ऊपर माइनस नीचे। नेट चार्ज 0, यस। इलेक्ट्रोस्कोप इज नॉट चार्ज्ड। ठीक, पर दोनों लीफ जो हैं, दोनों के पास सिमिलर चार्जेस आ गए, सो दे गेट एक्सपेंशन, राइट? अच्छा, अब अगली चीज देखिए। इस फिनोमिना को यूज करके हम किसी बॉडी पे नेट चार्ज भी ला सकते हैं। कैसे नेट चार्ज ला सकते हैं? बहुत सिंपल है। ये हमने किया ना ऐसा एक्शन, ये वाले जो चार्जेस हैं इसको हम खींच के बाहर ले गए। ये तो बाहर जाने के लिए तैयार हैं। हमने इनको रास्ता दिया कि जाओ ग्राउंड में चले जाओ। एक तार लगाया, ग्राउंड में चले जाओ। ये चले गए ग्राउंड में, इस तार को हटा दिया। उसके बाद इसके पास सिर्फ कौन से चार्ज रह गए? पॉजिटिव। द बॉडी गेट्स नेट चार्ज। तो इसी को हम 4th स्टेप में स्टडी करते हैं। देखिए, ये दिस इज अ बॉडी विच इज टू बी चार्ज्ड। स्टेप 1, प्लस माइनस दोनों बराबर हैं। नेट चार्ज क्या है इसका? 0। स्टेप नंबर 2, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हम लेकर आए और इसके सामने रखा इंडक्शन कराने के लिए। तो ये किसको खींचेगा? पॉजिटिव। नेगेटिव को इसने खींच लिया और रिपेल किसको किया? पॉजिटिव रिपेल हो गए। 3rd स्टेप, ये जो इसके फ्री चार्जेस थे, कौन से? पॉजिटिव, इसको हमने किससे कनेक्ट करा दिया? अर्थ से। तो उनको एक रास्ता मिल गया। ये स्टेटमेंट हम 2 तरह से बोल सकते हैं। एक ये, पॉजिटिव चार्जेस ग्राउंड में चले गए, तो यहां पे चार्जेस कैसे रह गए? 0, नो चार्जेस। पॉजिटिव ग्राउंड में चले गए। अगर पॉजिटिव ग्राउंड में चले गए तो इसका नेट चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे। अब चूंकि पॉजिटिव रिपेल होकर ग्राउंड में चले गए, तो ये क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। उसके बाद हमने क्या किया? जिस रास्ते से इसको ग्राउंड में भेजा था वो रास्ता हटा दिया, कट अर्थ वायर। वो रास्ता हट गया, अब वो वापस नहीं आ सकते प्लस। उसके बाद आफ्टर दैट वी डिड दिस, रिमूव द फर्स्ट बॉडी। ये फर्स्ट बॉडी को अब हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या हो गया? ये प्लस माइनस फिर मिक्स हो गए ऐसे। लेकिन अब एक्सेस कौन है? माइनस, क्योंकि कुछ प्लस अर्थ में जा चुके। अगर माइनस एक्सेस हो गए तो ये बॉडी अब क्या कहलाएगी? चार्ज्ड बॉडी। दिस इज हाउ वी चार्ज ए बॉडी बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंडक्शन। समझ आया? तो ये 4 स्टेप्स आपको बनाने हैं।
and you have to remember how to charge a body by using induction. Okay, यहाँ पर we can say the positive charges have moved here, पर उसमें कुछ स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का न्यूक्लियस, पिछली क्लास में बात हुई थी कि वो तो मूव करता नहीं है, प्रोटॉन मूव नहीं करता बिकॉज इट्स वेरी हैवी, तो फिर पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों जाएंगे? एंड दैट इज ट्रू. पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट गो टू अर्थ. व्हाट डज इट डू? इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन. It attracts electron from the earth and neutralize itself. Neutralize itself. So for a atom को ऐसा होल देखें तो उसमें तो दोनों चार्जेस इक्वली हैं तो जा सकते हैं. हाँ, तो ये पॉजिटिव चार्जेस ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए. अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसका चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. तो ये बॉडी पे अब नेट चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव. ये 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? हाँ, अर्थ से उसने खींचे. तो वो इलेक्ट्रॉन पहले उसका नेट चार्ज क्या था? 0. ये इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए तो नेट चार्ज नेगेटिव. सो इट हैज बिकम चार्ज पार्टिकल. सो दिस इज चार्जिंग डन यूजिंग द फिनोमिना ऑफ इंडक्शन. इसको हमने किसी कंडक्टर से टच नहीं किया, किसी चार्ज बॉडी से टच नहीं किया, उसके बाद भी इसमें चार्जेस आ गए. सो दिस चार्जेस, दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. ये मेथड आप याद रखेंगे. सो वी कैन डू चार्जिंग बाय कंडक्शन, टच, बाय इंडक्शन विदाउट टच. करेक्ट? ओके. सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. और इसके बहुत सारे फिनोमिनास हमको मिलेंगे आगे जाके जब हम पढ़ेंगे, जगह जगह पर हमको इंडक्शन को यूज करना है. ओके, नाउ वी चेंज द टॉपिक. वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टीज. इलेक्ट्रिक चार्जेस, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी. Additivity, it can be added together and these can be added by the rules of algebra. +5 -3, ये 2 पार्टिकल हैं, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया. अब इस पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? +5 - 2, that is equal to +2. अलजेब्रा. 5 and 2 7 नहीं होगा. जैसे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमने मिलाया, कितने एटम बने? 3. हाँ, माइनस तो नहीं कर पाए ना, प्लस ही करना है हमको. हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, उसको जैसे फिर से Zn 2Zn पॉजिटिव 1SO4 नेगेटिव, दोनों को हमने मिलाया, एटम कितने हुए? यस, Zn SO4, वो 3 हुए. ये कौन सा सम है? अरिथमेटिक सम. लेकिन चार्जेस में अरिथमेटिक सम नहीं करना है. Zn वाला जो पार्टिकल आ रहा है 2 Zn लेके, उसके पास कितना चार्ज है? +2. SO4 आ रहा है, उसके पास कितना चार्ज है? -2. दोनों मिला के Zn SO4 बना, नेट चार्ज 0. तो चार्ज जब ऐड करेंगे तो कौन सा मेथड? अलजेब्रा. और जब पार्टिकल ऐड करेंगे, मास ऐड करेंगे, तो कौन सा लेंगे? अरिथमेटिक. तरीका समझ आया? सो इसमें हमको बस सिंपली याद रखना है, द चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा वेयर प्लस एंड माइनस विल बिकम 0. तो 0 होना पॉसिबल है. ओके, नाउ सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और द प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन मीन्स किसी भी चीज की क्वांटिटी डिसाइड करना. ठीक है, कि इसको हम क्या कहेंगे? 1 दर्जन चौक है, 1 डब्बा चौक है, 20 टुकड़े हैं चार्ज. तो ऐसे हम हर चीज की क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी हम कैसे मेंशन करेंगे. तो चार्ज की भी हम क्वांटिटी मेंशन करना चाहते हैं. तो हमने क्या देखा? एक प्रॉपर्टी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, that charge is an integral part of
पार्टिकल, मटेरियल, यानी बिना मटेरियल के चार्ज नहीं होता। चार्ज हमेशा किस पर होता है? मटेरियल पर ही होता है। अगर हमको चार्ज ट्रांसफर करना है तो किसको ट्रांसफर करना पड़ेगा? उस मटेरियल को ट्रांसफर करना पड़ेगा जिसके पास चार्ज है। खाली चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। और वो मटेरियल, सबसे छोटा मटेरियल कौन है जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम काट नहीं सकते। अगर हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ के और छोटा नहीं कर सकते तो हम चार्ज को भी और छोटा नहीं कर सकते। यानी सबसे कम से कम चार्ज हमको कितना मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन का, राइट? एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6। ये बॉडी अभी न्यूट्रल है, जितने प्लस उतने माइनस इसके पास है। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर लाकर रख दिया तो इसके पास कितना चार्ज हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया। एक इलेक्ट्रॉन और लाके रख दिया, अब कितना चार्ज हो गया? 3.2, 1.6 एंड 1.6। एक और इलेक्ट्रॉन लाकर रख दिया 4.8, उसके बाद एक और लाके रखा 6.4। तो हमने कहा ऐसा करो, इस बॉडी को चार्ज कर दो। कितना चार्ज? 2.5। क्या आप इसको 2.5 चार्ज दे सकते? एक इलेक्ट्रॉन डालिए, कितना चार्ज आ गया? आपने सोचा कम है, एक और डाल दीजिए, कितना हो गया? हमको तो 2.5 चाहिए। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो हम अपना मन मर्जी चार्ज नहीं दे सकते किसी भी बॉडी को। वो चार्ज कैसा होना चाहिए? 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। या तो 1.6 दीजिए या 3.2 दीजिए या 4.8 दीजिए, बीच वाला चार्ज नहीं दे सकते। ये बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, इट इंक्रीज इन स्टेप्स। और हर स्टेप कितना? 1.6। तो ये जो चार्ज होते हैं, ये चार्ज इस तरह से बढ़ेंगे। ये 1.6, 1.6, 1.6, 1.6 ऐसा कंटिन्यूअस चार्ज नहीं बढ़ता। ये वाला इंक्रीज कैसा हो रहा है? कंटिन्यूअस। ये वाला इंक्रीज कैसा हो रहा है? स्टेप्स। दोनों में हम यहां पहुंच गए। चार्ज ऐसे बढ़ता है कंटिन्यूअस या ऐसे बढ़ता है स्टेप्स में? तो आंसर है चार्ज स्टेप्स में बढ़ता है। और हर स्टेप कितना होता है? 1.6। तरीका समझ आया? ये है द चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी। अब अगली चीज समझिए। एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा? 1.6। उसका नाम हमने रख दिया E, छोटा ई। 2 देंगे तो 2E, 3 दिए तो 3E, N दिए तो NE। NE क्या है उसके पास? चार्ज। चार्ज की क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हमने लिखा Q, तो Q कितना हुआ? NE। यही क्वांटाइजेशन। Q इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन टू द बॉडी multiplied by 1.6. This is known as quantization. The quantity of charge on any body is number of electron transferred multiplied by elementary charge E. इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, elementary charge. Okay, so this is quantization. So the electron cannot be divided further. Therefore, we cannot break that 1.6. It has to be integral. Integral का मतलब क्या? 1.6 का एक पैकेट, वो पैकेट का और आधा नहीं हो सकता। ठीक है? So this rule is known as quantization of charges. ठीक? अब ये दूसरा रूल हो गया, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहे हैं तो प्लस Ne, और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो माइनस Ne. राइट? सो Q इज इक्वल टू Ne, इसको हम याद रखते हैं एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला। यहां से हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला स्टार्ट होंगे। राइट, अब इसकी थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस दुनिया में जितने चार्जेस हैं
वो पूरे के पूरे कंजर्व होते हैं, उसका नंबर हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। वी कैनॉट इंक्रीज, वी कैनॉट डिक्रीज, प्लस जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। द नेट चार्जेस आर 0। ठीक है, सो दिस इज ए लॉ विच इज नोन एज कंजर्वेशन लॉ। इसको कंजर्व करना है, इसको नेचर हमेशा संभाल के रखता है। क्या कंजर्व कराता है कि नेट चार्ज दुनिया में कितना होना चाहिए, 0। लेकिन हम जब रब करते हैं तो इसके पास चार्ज आता है, तो वो कहां से आ गया, यहां से आ गया, इधर से निकला और इसमें आ गया, पर इस दुनिया के नेट चार्जेस सेम है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर बॉडी। ये समझ आया? सो वी कैन नॉट क्रिएट ए चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय ए चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हम एक इलेक्ट्रॉन बनाना भी नहीं जानते, इसलिए हम चार्ज क्रिएट भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर करके हम एक बॉडी को नेगेटिव और एक को पॉजिटिव बना देते हैं। सो दिस हैज बिकम ए लॉ, वी कैन नाइदर क्रिएट द चार्ज नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय द चार्ज, वी कैन ओनली ट्रांसफर द चार्जेस। ठीक है, बाद में एक प्रॉब्लम हुआ, जब हमने एटम बॉम्ब बनाया तो उस समय यह हुआ कि एटम बॉम्ब की एनर्जी कहां से आई, तो आइंस्टाइन ने क्लियर किया, सब मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एम मटेरियल को कन्वर्ट किया तो mc² एनर्जी बनी, E इज इक्वल टू mc², इतनी एनर्जी बनी, एंड C हैज गॉट अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो बहुत एनर्जी बनती है। पर उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक m मास को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अब मास जिस मटेरियल का बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा ही, इलेक्ट्रॉन के बिना तो कोई मटेरियल नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसके चार्ज का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया तो चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो गया। पर हमारा तो रूल है दैट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, पर एटम बम बना मतलब चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ, कंट्रोवर्सी हो गई। तो ये फिर साइंटिस्ट ने बहुत सोचा कि ऐसा कैसे, तो इसके लिए फिर हमने रूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और एक नई चीज ढूंढी। नई चीज हमने क्या ढूंढी, एक नया पार्टिकल, और उस पार्टिकल का नाम हमने सोचा पॉजिट्रॉन। उस समय तो ये खाली सोचा था, क्योंकि हमको वो दिखा नहीं कहीं, कोई प्रूफ नहीं था। हमने ये सोचा कि इस नेचर में एक जिस तरह से नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज वाला छोटा सा पार्टिकल पॉजिट्रॉन भी होगा। हमको नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है, हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर होता होगा, इसलिए हमको नहीं दिखता। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी सोची गई कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, दैट इज नेग्लिजिबल। ओके, अब पॉजिट्रॉन हमने सर्च कर लिया। पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन इज ए पार्टिकल विच इज पॉजिटिवली चार्ज, इट्स मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जब हम एटम बॉम्ब बनाते हैं तो उसके अंदर एक्शन क्या होता है, वन पॉजिट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, दे स्ट्राइक ईच अदर। क्यों स्ट्राइक करते हैं वो, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जस्ट वेट, अभी चालू हो जाएंगे। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनमें फोर्स होगा अट्रैक्शन का। ये इतनी जोर से एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, बहुत जोर से टकराते हैं, दोनों के परखच्चे उड़ जाते हैं, जैसे हेड ऑन कोलिजन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब टूटेंगे तो वो क्या बनेंगे, उससे छोटा तो कुछ होता नहीं है, तो क्या बन जाते हैं वो एनर्जी की वेव्स बन जाती, जैसे धूप, लाइट, हीट। तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, उसका मटेरियल नेचर गायब, और उसकी जगह कौन सा नेचर आ गया, एनर्जी का नेचर। दैट इज कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू एनर्जी।
ठीक, ये एनर्जी बहुत सारी निकली, बहुत सारी हीट, बहुत सारी लाइट, जो कि आपने देखा बॉम्ब में निकलती है। ओके, लेकिन हम तो चार्जेस की बात कर रहे थे। हमारी इस दुनिया में से कौन सा चार्ज उठ गया? दोनों। नेट चार्ज पहले क्या था? जीरो। जीरो में से एक माइनस भी गया और एक प्लस भी गया, अभी भी नेट चार्ज क्या रहा? जीरो, क्योंकि माइनस प्लस दोनों चले गए। ठीक है, तो हमारा कंजर्वेशन लॉ बच गया। इस दुनिया का चार्ज हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, वो जीरो ही रहेगा। जब डिस्ट्रॉय होना है तो प्लस माइनस इकट्ठा डिस्ट्रॉय होगा। ये जो चीज है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और दोनों का एक दूसरे को निगल जाएंगे, निगलने को कहते हैं एनिहिलेशन। और इसके कारण जो हमारा कंजर्वेशन लॉ है दैट इज प्रिजर्व्ड। तो कंजर्वेशन का हमने एक दूसरा फॉर्मेट बना लिया। क्या दूसरा फॉर्मेट? द चार्जेस इन पेयर, जोड़ी में, कैन बी क्रिएटेड और कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने जोड़ी में डिस्ट्रॉय किया था अभी, और उससे क्या बना? एटम बॉम्ब। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनिहिलेशन। ये आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज एनिहिलेशन। उस समय आपको पूरा याद करना रहता है कि एनिहिलेशन शब्द हमने कहां पढ़ा था। तो याद रखिए, दिस इज एनिहिलेशन। आपको ये लिखना है एनिहिलेशन, यू हैव टू राइट दिस, वेयर माइनस एंड प्लस बोथ एनिहिलेट ईच अदर एंड व्हाट वी गेट इज एनर्जी। अब नेचर में हर चीज का रिवर्स भी होता है। क्या इसका उल्टा होता है? क्या हम चार्जेस क्रिएट कर सकते हैं? तो हमने सोचा हम कर सकते हैं। पहले तो थ्योरेटिकल बनाया, कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले, 5-6 साल हुए, हमने इसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर लिया, थ्योरेटिकली बनाने के 20 साल बाद। अच्छा, वो क्या था कि जब गामा रेज किसी हैवी मेटल पर पड़ती है, प्लेटिनम जैसे मेटल पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो कहां गई एनर्जी? तो आइंस्टाइन का कहना था वो एनर्जी मटेरियल में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गई। कौन से इक्वेशन से? E is equal to mc square, so m is equal to E upon c square। मटेरियल में तो कन्वर्ट हुई, पर कौन सा मटेरियल बनेगा? तो इलेक्ट्रिकल वालों ने क्या नियम बनाया कि भैया एक पार्टिकल नहीं बनेगा, कितने बनेंगे? 2, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ताकि फिर से हमारा नेट चार्ज क्या हो? जीरो। सो इट इज कंजर्व। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। Whenever gamma rays strike a heavy metal, what we get is a negative electron and a positive positron, so that net charge of the universe do not change. Net charge of the nature do not change. This is again conservation of charges. तो conservation of charges में अब हमने 3 चीजें बना ली। नंबर 1, सिंगल और इंडिविजुअल। Isolated means single. A single electric charge can neither be created nor it can be destroyed. ये हमने प्रूफ देखा। यूरेनियम को छोड़ दिया, उस यूरेनियम से थोरियम बना, हीलियम बना, और दोनों के चार्ज हमने काउंट किए। जितने चार्ज इधर थे उतने ही चार्ज इधर हो गए। ये चार्ज कितने थे? दिस वाज ना, सॉरी, 94, 92 एंड 2। तो ये मास का है और ये चार्जेस का। सो चार्जेस आर कंजर्व। इस प्रोसेस में हमने कुछ नहीं किया, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस क्या प्रूव करती है? चार्जेस आर कंजर्व। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज इफ देयर इज ए डिस्ट्रक्शन दैट इज इन पेयर, डिस्ट्रक्शन इन पेयर इज कॉल्ड एनिहिलेशन। ठीक है। प्रोडक्शन इन पेयर, पेयर प्रोडक्शन। Whenever gamma rays strike, we get 1 electron and 1 positron compulsorily. अकेला इलेक्ट्रॉन या अकेला पॉजिट्रॉन नहीं बनेगा, so that the net charges are conserved. So, with many other properties of the charges, we have studied these properties: additivity, quantization, and conservation. Before that, we have studied
induction. Before that, we have studied that they repel each other. Similar charges repel each other. Due to all these properties, only because of these properties, we have complete electricity. इसलिए अगर आपको ये सब प्रॉपर्टीज समझ में आती हैं तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी हम बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं. पूरी इसी पर ही बेस्ड है. इसी को एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे एंड विल गो फॉर न्यू एंड न्यू फॉर्मूलाज ऑन दैट. राइट? सो वी विल क्लोज इट टुडे. नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी कूलम्स लॉ.